फियर इज नॉट अ सिंपल फीलिंग और इमोशन। फियर का जैसे ऑनियन होता है ना, ऑनियन तो हम जैसे एक पील करते हैं तो ये अंदर 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 इतना डीप जाता है ये फियर, और हर लेवल पे हमको अफेक्ट करता है। That's very true. अवॉइडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू नेगेटिवली टू डील विद फियर। बेसिकली व्हेन यू फेस द फियर, फियर आप हैंडल अच्छे से कर सकते हो, पर आप अवॉइड करेंगे और कभी फियर फेस नहीं करेंगे तो आप शायद जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे। जैसे अगर हम हॉरर मूवी में बैठते हैं तो कोई फियर है नहीं, बट विजुअलाइजेशन इस तरह का होता है या साउंड इफेक्ट इस तरह का होता है कि हमको डर होता लगता है, गूज़बम्प्स होता है और फियर का हर लेयर एक्टिवेट हो जाता है। सो समटाइम्स फियर कैन एक्चुअली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. It is always not bad. Dr. Mohit Shah is a distinguished Mumbai-based psychiatrist and the founding director of the Resilience Clinic, where he leads an international practice addressing mental health disorders across childhood, adulthood, and geriatric care. His accolades include the Young Scholar Award in Psychiatry 2009, and his tenure includes consultancy with Medincell, France, on mental health strategy in India. Known for his depth of expertise in mood disorders, relationship-related issues, and dementia, Dr. Shah is committed to bringing evidence-based psychiatric care to a global clientele. So when we talk about fear, what exactly does it mean? Okay, so fear is not a simple feeling or emotion. Okay, it is a complex phenomena where there is a physiological component and a psychological component. Now, basically, it is our internal survival mechanism to a perceived threat or uncertainty. So let me explain to you. So when we are on a flight, okay, and there's a turbulence, okay, so the physiology of our body makes you freeze, or it makes you feel little anxious, and then you think, oh my god, what if this flight crashes? And that is the time where you start feeling increase in heart rate, you may get a panic attack. So fear has a lot of components, and maybe the next time that thought will kick in and you may avoid going to a flight. So that is how it works. So it's not just an emotion, it runs deeper in terms of psychology and physiology. So do you think fear comes from the fact that we are uncertain of what's going to happen? When people think about their life and they think about their future, will I make it to work? There's so much traffic, it's raining. When, let's say, we are uncertain, right, and you say, oh, the rain is crazy and the traffic is crazy, I won't make it, fear comes in. Like you said, if I'm taking a flight and the turbulence was crazy the last time I took a flight, so this time there'll be a lot of fear. So do you think fear comes from uncertainty, or do you think it runs deeper than that? Okay, so it is both. Fear has a component where it comes from uncertainty, and also it's also past experiences. It's how you are conditioned in a way. आपकी परवरिश में कुछ चीज़ें हैं या आपने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है, कोई ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया है, तो इसके लिए फियर के बहुत सारे लेयर्स हैं. तो एक सरफेस फियर है या इमोशनल फियर है, देन कोर फियर्स है, ईगो फियर्स है. तो इस तरह के कंपोनेंट्स हैं तो जो फियर को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाता है. And when we talk about fear, some of it is learned from my experiences, like you said. Some fears seem to be inborn. Can you explain that? Yeah, so I'll give you a very simple example. So they are called innate fears. जो fear बचपन से है, तो आपने देखा होगा कि दिवाली में जब फटाके बजते हैं और छोटा बच्चा ऐसे 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 करता है. So that is a fear of loud noise, which is an innate fear. Also, another innate fear is fear of falling. Now this fear is a protective fear because वो बच्चे को गिरने से बचाता है कि भाई पकड़ना है, नहीं चलना है, अभी मैं तैयार नहीं हूँ. बट मोस्ट ऑफ द अदर फियर्स जो बाकी के फियर है, जैसे फियर ऑफ फ्लाइंग या फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ कॉकरोचेस, फियर ऑफ फेलियर, रिजेक्शन, ये सब फियर बाद में हमको कल्चरल कंडीशनिंग की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से बनते हैं. Yeah, like how our life shapes up. Obviously, the experiences we have in our life shapes up. But then, let's say a fear of height, right? Do you think that is inborn, or do you think that happens through experience? दोनों. ठीक है, फियर ऑफ हाइट जब भी इनबॉर्न भी हो सकता है या कुछ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस या ट्रॉमा की वजह से भी बन सकता है. सो ये फियर ऑफ हाइट इज समथिंग विच कैन बी बोथ. Tell me the 5 most common fears that largely you see patients have. ओके, सो फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, लिफ्ट में जाने का फियर उनको काफ़ी होता है. फियर ऑफ हाइट इज़ वेरी कॉमन. इवन फियर ऑफ फ्लाइंग इज़ वेरी कॉमन. फियर ऑफ स्पाइडर्स या स्नेक देख के बहुत लोगों को वो स्किन में कुछ Tingling सेंसेशन feeling. होता है, टिंगलिंग फीलिंग होता है. तो ये थोड़े
fears काफ़ी common है. And why do you think these are common across the board? Because not everybody's experienced a snake in their house or snake in their experience, but because it's a common thing, why do you think that happens? So basically, fear is a survival mechanism. So एक protection, अपने आप को बचाने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है. तो ये fear बहुत trigger होते हैं कि ये आपको danger से बचा रहे हैं. So that is why I think these fears are very common. So see, fear of failure is very common. जैसे बच्चा काफ़ी अच्छा कर रहा है, अपने उसको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, अच्छा है पढ़ाई में, बट बिकॉज ऑफ मे बी पेपर अच्छा नहीं गया या पेपर बहुत टफ था, वो फेल हो जाता है. सो वो पहला एक्सपीरियंस उसका फेलियर का, एंड ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस फेलियर. तो वो इतना उसको सदमा लगता है कि कभी भी वो फियर ऑफ फेलियर काफ़ी लोगों का इतना प्रबल हो जाता है कि एग्ज़ाम आने के पहले ही उनको एंजाइटी होने लगती है, पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाते तो वो भूल जाते हैं. सो एक फियर ऑफ फेलियर इज़ वेरी कॉमन जो काफ़ी बच्चों में पाया गया है. And do you think fear of failure can even come before this exam and marks? For example, a child is 4-5 years old and the parents or a grandparents ask them to do something in the playground and they're unable to do it. That's also failure. And let's say repeated failure. I went to the playground, all the other kids were able to kick the ball around, I wasn't able to. I've come home, my mom asked me to put the table with her or do some chore at home, I was unable to. So as children, we're so innocent, right? Anything can be seen as failure because I was not able to complete the task. It's not really a failure, but they don't understand that because their world is quite black and white. Right. Do you think that can transform into or translate into failure as well? Yes, तो पेरेंट्स की तरफ से या ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कांस्टेंट क्रिटिसिज्म होता है या कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, जो बोलते हैं ना कि अगर छोटा टास्क भी बच्चा करता है ना, आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो वो और अच्छे से करेगा, उसको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी एबिलिटीज़ में. और वो फेल भी होता है तो आप बोले ओके, इट्स ओके, डजंट मैटर, कुछ होता है बेटा, कोई बात नहीं है. बट अगर वो देखो, वो तो वो करता है, वो तो डांस करती है स्टेज पे इतनी छोटी हो के, तू तो डांस भी नहीं कर रही है, तू शर्मा रही है. वो जंप करता है एक हाइट से, आप तो डर रहे हो, तो आपको कैसे चलेगा, वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है. अगर इस तरह की आप बातें करते हो तो वो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो फिर ये फियर काफ़ी बचपन से डेवलप होने लगता है. ये इस तरह का जब क्रिटिसिज्म होता है या कंपैरिजन होता है तो बच्चों में पहले से ही एक कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है और उसकी वजह से वो चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता है, डिनायल में चला जाता है, पहले ही मना कर देता है. और इसकी कंडीशनिंग पे इसका बहुत बड़ा असर होता है और उसकी जो साइकोलॉजी है उस पर भी इम्पैक्ट करता है. So imagine that small fear in childhood of just saying you're not, let's say, doing what the other child is doing or you're not doing what your neighbors are doing. That can really show up largely in your entire life, in your relationships, at your work, in your adult life, right? राइट. इसीलिए कहते हैं कि पेरेंटिंग जो होता है स्पेशली किड्स का, वो बहुत ज़रूरी है. वो टाइम पे अगर आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एक अप्रिशिएशन मिलता है, आपके साथ कोई खड़ा है आपके फेलियर में भी, तो वो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है. क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का किसी के कुछ चीज़ें अच्छी होती है, किसी की कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे अपने फियर पे काबू पाता है या बेटर होता है बाकी बच्चों से. राइट. So fear can influence our thoughts, our feelings, our actions, and even the way we see the world. Can you explain it simply? How should we understand fear right from the beginning? सो बेसिकली फियर अपना बॉडी का अलार्म सिस्टम है कि अगर हम कोई चीज़ से हमको डर लगता है तो वो हमको वो बचा रहा है फियर. तो एक अलार्म सिस्टम होता है कि अगर मैं कार स्पीड पे चला रहा हूँ तो मुझे कार को थोड़ा स्लो डाउन करना है, बिकॉज आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप कंट्रोल लूज़ कर सकते हो. या फिर आप ट्रेन में चल रहे हो तो अगर बहुत रश है तो आपको करना है कि नहीं, मैं ये ट्रेन में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरी ट्रेन में जाऊंगा. तो एक फियर एक अपना अलार्म सिस्टम है जो कि अपने को डेंजर से बचाता है. राइट. अब कभी कभी क्या होता है, ये फॉल्स अलार्म भी हो जाता है इसकी वजह से कि हमको ऐसा लगता है कि अगर फियर जहाँ नहीं भी होना चाहिए हमको वहाँ भी फियर होता है. जैसे हम नॉर्मल अगर स्पीड में गाड़ी चल रहा है तो भी हमको डर लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर हम नॉर्मल डे टू डे कुछ चीज़ें कर रहे हैं उसमें भी हमको डर लगता है और हम क्या करते हैं, अवॉइड करने लगते हैं. तो इसके वजह से क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं. और अवॉइडेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे टू नेगेटिवली टू डील विद फियर. लाइक यू बेसिकली व्हेन यू फेस द फियर, आपको फियर आप हैंडल अच्छे से कर सकते हो, पर आप अवॉइड करेंगे और कभी फियर फेस नहीं करेंगे तो आप शायद जो करना चाहते हो वो कर नहीं पाओगे.
आपको स्टेज में कुछ प्रेजेंट करना है, पर क्योंकि आपको डर है कि लोग आप पे हंसेंगे या लोग आपको जज करेंगे, तो आप उसको वो कैंसिल कर दोगे इंटरव्यू, या फिर बोलने के लिए आप जाओगे और आप बैक सीट ले लोगे, नहीं जाओगे। तो इस तरह से फियर डे टू डे वर्ल्ड में हमको अफेक्ट करता है। And we've been talking about fear as a natural emotion, right? Right. You and I have discussed that it occurs naturally. We feel scared of things. We feel scared of animals, insects, bugs, or we feel scared of darkness, heights, like you described. So it's a natural emotion that occurs. Tell me, how does it show up in different layers in our life? सो फियर बेसिकली सरफेस फियर होता है, जो एकदम जैसे अभी मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, राइट? तो मुझे शायद अगर मेरे पल्पिटेशन हो रहा है थोड़ा, या मुझे स्वेटिंग हो रही है, तो ये सरफेस फियर है कि ये एकदम सरफेस पे फियर है। फिर मेरे मन में क्या चल रहा है, जो मेरी साइकोलॉजी क्या कहती है, आई एम नॉट गुड इनफ, कि भाई मैं शायद इंटरव्यू अच्छा नहीं दे रहा हूँ, मैं हिचक रहा हूँ, मैं बराबर बोल नहीं पा रहा हूँ। तो ये साइकोलॉजी का फियर होता है। फिर वो ईगो लेवल पे जाता है और डीप जाता है, आई एम नॉट गुड इनफ, यार मेरा यहाँ पे मुझे आना नहीं चाहिए था, मैंने गलती कर दी। उसके बाद में और अंदर जब जाता है फियर, तो वो होता है कि फियर स्पिरिचुअल हो जाता है कि अरे नहीं यार, ये जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है, कोई चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है। तो फियर का जैसे वो ऑनियन होता है ना, ऑनियन, तो हम जैसे एक फील करते हैं, तो ये अंदर 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 इतना डीप जाता है ये फियर, और हर लेवल पे हमको अफेक्ट करता है। तो इस तरह से फियर बहुत कॉम्प्लेक्स है। So I'll give you an example of a young girl who came to me after a breakup. तो breakup के बाद जैसे उनको सबसे पहले, जैसे अगर सरफेस लेवल फियर की बात करें, तो एनजाइटी होना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना। देन डीपर जाके हम बात करते हैं जब साइकोलॉजी की, तो बेसिकली कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे से कोई रिलेशनशिप हमेशा मुझे धोखा दिया जाता है, मैं इतना प्यार करती हूँ लोगों को, वो भी मुझे प्यार वापस नहीं मिलता है, और इस तरह के थॉट प्रोसेस चलते हैं। एंड देन एट ईगो लेवल पे फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, कि मुझे कभी कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने देखा है कि काफ़ी लोग ऐसे रिलेशनशिप में स्टक होते हैं जहाँ उनको पता है कि ये बंदा मेरे लिए सही नहीं है, ये बंदा या बंदी जो भी है मेरे लिए सही नहीं है। पर ये जो डीप रूटेड फियर होता है कि नहीं, मुझे शायद इससे अच्छा कोई मिल नहीं सकता, या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ और मुझे प्यार मिलेगा नहीं, इसके लिए हम कभी कभी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी अटके हुए होते हैं। And repetitive पैटर्न्स होता है वो, अब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, उससे हम बाहर ही नहीं निकलते हैं, उसमें ही रहते हैं। लोग बोलते हैं कि यार इससे निकलो, तो वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, लड़की ठीक नहीं है, तू क्यों इसमें पड़ी है, तू इतनी समझदार है या तू इतना समझदार है, फिर भी वो उसी में अटके हुए रहते हैं। सो ये बेसिकली हमारे फियर की वजह से होता है। So on a spiritual level, her fear was maybe what is the meaning of life, कि लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में क्या चीज़ बची है, कुछ बचानी है, इस तरह के थॉट्स दिमाग में चलते हैं। So then people land up staying in situations because the fear is so deep rooted, and the fear is related to I can't be happy. Yeah. And I'm not good enough. Yes. And then it shows up in different forms. Right. But like you said, fear is generally, let's say, coming from conditioning or coming from childhood or coming from family environments and things like that. Do you think fear can be induced? Do you think fear can be created in a body or a mind? Yes. So classical example is horror movie. जैसे अगर हम horror movie में बैठते हैं तो कोई fear है नहीं, बट विजुअलाइजेशन इस तरह का होता है या साउंड इफेक्ट इस तरह का होता है कि हमको डर होता लगता है, गूज़बम्प्स होता है, और फियर का हर लेयर एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर क्लासिकल विदाउट एनी परसीव थ्रेट हमको तभी फियर महसूस होता है। सो जब हॉरर मूवी में हम इससे सीन्स देखते हैं, डर जाते हैं, कोई अचानक से आ जाता है सामने, या फिर कोई ऐसा साउंड आता है, तो हमारे दिमाग में कुछ इमेजिनेशंस चलते हैं कि हमने देखा होगा कि हम भी कभी कोई होटल में रुके हैं जहाँ कोई नहीं था, और क्या कोई ऐसे अभी आजकल विलास में लोग बहुत रहते हैं, तो कुछ विलास थोड़े भूतनीय भी होते हैं कि उनको वहाँ पे लगता है कि अरे यार कुछ गड़बड़ है या कुछ आवाज़ आती है रात को, तो हम वो रिलेट करते हैं, और वो हम रिलेट करने की वजह से हमको फियर फील होता है। तो हॉरर मूवी इज वन क्लासिकल एग्जांपल। So they all like created fear. Yeah, That's actually very true, because I'm somebody who
doesn't necessarily believe in ghosts and spirits and things like that. But after I watch a horror movie, I actually start thinking, do I want to switch off all the lights before sleeping? I'll ask my husband, can you make sure you're in the room? Right. And otherwise, I don't care. I sleep in a very dark room and I don't really care. But you're right. For 2 days, I'll be thinking about absolutely. it. And I start imagining maybe that, like you've seen a movie and something pops up and is waiting in the dark. You actually start imagining there's something there. Slight sounds, which I don't know, I imagine you are real. Did somebody click the door? Somebody open the door? It's hilarious that you said that. It actually happened to me 2 nights ago. My husband said, yeah, we always watching these thriller movies or funny movies. Let's watch a horror movie. And I'm not really keen, but we watched one. Right. Now, in the movie, every time that lady was sitting, the candles would blow out and the light would go off and suddenly the face would come. And 2 nights ago, I said, halfway through the movie, I left and I said, I'm going to go sleep. I went to the bedroom and I left the lights on. I went to sleep. Imagine that fear became so deep rooted that I woke up at 2 o'clock suddenly and I saw the light was off and I saw the bed was empty. I got so scared. Right. Who switched off the light? Right. And I'm not a paranoid person. I don't have fear of ghosts and spirits, but I became so paranoid. I called up my husband. He's saying I'm in the toilet. I said, who switched off? He said, I switched off. I said, I didn't hear you. He's like, how would you hear me? You were sleeping. But like you said, that fear can be created on such a deep level so instantly. Yes. और वो 2-3 दिन क्लासिकल जैसे आपने बोला 2-3 दिन वो रहता है फिर वो मेमोरी फेड्स अवे कि वो इतना नहीं होता इसीलिए पर अगर बचपन में आप हॉरर मूवी बच्चे को दिखाते हो तो ये ट्रिगर हो सकता है बिकॉज उनका माइंड है ना इसको अभी भी प्रोसेस करने के लिए रेडी नहीं होता है करेक्ट तो वो थोड़ा हमको केयरफुल रहें बच्चे हम बड़े हो जाते तो वी आर एबल टू डील हमको भी डर लगता है पर वो 2-3 दिन ही रहता है पर वो कोई तरह का मेमोरीज या जैसे अमिगडाला एक सिस्टम होता है अपने बॉडी में ब्रेन में थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम वो कभी अभी गलती से एक्टिवेट हो गया ना तो थोड़ा हमको केयरफुल रहना इसलिए बच्चों को हॉरर मूवी दिखाने के पहले थोड़ा हमको केयरफुल होना चाहिए Yeah, because as adults, we are able to distinguish between imaginary and real. But I think for children, it can get difficult. And then they can carry on that thought, every night कि मेरे रूम में तो कोई है. Right. And I think it can really play out in your adult life. Yes. Give me another example of a fear that is man-made, induced, kind of given to you when it doesn't actually exist. सो सी अनदर एग्जाम्पल इज जैसे हम बच्चों को काफ़ी बार बच्चे अगर कोई चीज़ मानते नहीं है अगर वो स्कूल जाने को तैयार नहीं है या कुछ खाने को तैयार नहीं तो हमको बोलते हैं अरे सिक्योरिटी आएगी पुलिस आएगी आपको जेल में लेके जाएगी नीचे एक जेल है बिल्डिंग में वहाँ पे आप बच्चे जो नहीं सुनते हैं वो बच्चे को वहाँ For discipline reasons. हाँ तो पर अगर वो बार बार होता है एक आध बार कभी हम करते हैं तो ठीक है पर वो बार बार होता है तो देन यू आर क्रिएटिंग फियर ऑफ पुलिस यू आर क्रिएटिंग फियर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स और यू आर क्रिएटिंग फियर्स विच आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट तो एक तरह का एक फाइन लाइन होता है कि हम बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहिए बट उनको हमेशा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देने चाहिए कि नहीं अगर आप ये जाओगे नहीं आप स्कूल में या आप ये करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है बिकॉज जितना हम बच्चों को सही बोलेंगे जितना हम उनको सही बोलते हैं उतना वो करेज उनको डेवलप होता है और हम लोग उनको जितना डराएंगे इस तरह के थ्रेड्स देके तो वो डर पैदा होगा तो ये बचपन में बहुत ज़रूरी है कि उनको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स दीजिए और सही बताइए कि आप अगर कोई चीज़ वो नहीं कर रहा है तो उसको इस तरह का सिक्योरिटी पुलिस या इसका थ्रेट मत दीजिए उसके लिए कि वो सही क्यों नहीं है उसको हम समझाइए Now that you're saying it, I think there's another threat that I have seen when we were growing up. They used to say, finish your food, otherwise your neighbor will eat it, your friend will eat it. Finish this, otherwise I will tell that person to do it. Right. So it was a sort of fear of comparison or I don't know, fear of saying you're not good enough. Can you explain that? Because I think वो बच्चों में बहुत बोला जाता है आप खा लो नहीं तो वो खा जाएगा आप कर लो नहीं तो वो कर लेगा आप ले लो नहीं तो वो ले जाएगा so what is that fear called? Yeah, so that fear is कि अगर आप कुछ चीज़ें नहीं करते हो तो वो आपकी चीज़ें कोई और लेके जाएगा कि अगर आप टाइम पे कोई चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आप कोई फियर वो आप इंस्टिल करते हो कि वो कोई लेके जाएगा तो उसको हमेशा डर लगता है कि लॉस फियर ऑफ लॉस हो जाएगा कि मैं अगर टाइम पे नहीं खाता तो मुझे खाना नहीं मिलेगा अगर मैं कुछ चीज़ें नहीं जा रहा हूँ जैसे स्कूल में नहीं जा रहा हूँ तो मुझे आगे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगा तो इस तरह का फियर हम जब पैदा करते हैं तो बच्चे डरपोक हो जाते हैं कि वो कुछ फियर को फेस नहीं कर सकते हैं वो हमेशा डरे हुए ज़्यादा बोलेंगे नहीं अवॉइड करते हैं सिचुएशन कॉन्वर्जेसन नहीं करते हैं क्योंकि हम उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं देते कि वो फियर को फेस कर सकते हैं और उनको हम गलत एग्जाम्पल देते हैं ताकि उनकी जो कंडीशनिंग होती है वो ख़राब हो जाती है
You're right. The word darpok is very important to me. I feel like when I was a kid, I saw a lot of my friends, and we used to laugh. Like we were kids, we were innocent, we were 9, 10. Right. And I said, "Itna darpok hai yaar, why can't you just do it?" But you don't know where it's coming from. Right. And it's probably coming from parental influence or Right. home environment where Right. he or she's being told, Yeah. if you don't do this, this will not happen. Yeah. And that fear of confidence is not there. The fear of everything comes. हाँ. कि I'm not going to succeed. राइट तो वो जो डरपोक उसके दिमाग में होता है तो वो हमेशा उसको लेके चलता रहता है और वो आपको उसके डे टू डे लाइफ में दिखता रहता है और बाकी बच्चे भी फिर बुली करते हैं तो इस तरह का वो फियर डेवलप ही होते जाता है वो क्योंकि बचपन में वो बन गया वो उसका जो उसका इंटेंसिटी है वो बढ़ता ही जाता है Yeah, I don't think at any point you can suddenly tell yourself that no, I'm not going to be fearful now. Yeah. I don't think that नहीं, happens. that doesn't happen. You would require a lot of Yes. work, counseling, or Yes. therapy to realize that these are childhood fears and they're not true, Yeah. and I need to get over it. Right. Can you tell us about a patient or somebody you've had who probably had this conditioning and those fears were not real, and you help them overcome it? So I had a child, maybe she was around 8-year-old, and she stopped going to malls or airports. तो उसको कुछ भी उसके मम्मी पापा बोलते थे कोई भी ऐसी जगह जैसे मॉल जाना है एयरपोर्ट जाना है तो बोली नहीं मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना तो दे वर वरीड कि क्या हो गया तो दे आस्क्ड हर कि भाई पूछा कि क्या हो रहा है व्हाई आर यू नॉट गोइंग तो बोले नो आई डोंट वांट टू सो देन और थोड़े उसके पेरेंट्स भी उनका जो कम्युनिकेशन था बच्चे के साथ वो हमेशा से थोड़ा सा वॉलेटाइल रहता था वो बहुत ज़्यादा उनको एडवाइस देते थे उनसे कॉन्वर्जेशन पूछते नहीं थे सो नोबडी बेबी बेसिकली स्पोक टू हर नाइसली सो दैट शी कैन ओपन अप सो देन दे ब्रॉट हर कि नहीं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है तो देन फर्स्ट तो देन आई जस्ट मैंने कुछ नॉर्मल बातें की उनसे कि व्हाट आर योर लाइकिंग्स क्या करते हो आप स्कूल में कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है थोड़ा रैपो बिल्टअप हुआ तो मैंने बोला क्या हो गया वाई कि आप नहीं जा रहे हो एयरपोर्ट नहीं जा रहे हो मॉल में नहीं जा रहे हो बोले नहीं एस्केलेटर्स में जाते तो मर जाते बच्चे तो मैंने बोला क्यों एस्केलेटर्स में जाके बच्चे मर जाते हैं तो नहीं मैंने एक वीडियो देखा था स्क्रॉल करते करते मोबाइल पे कि एस्केलेटर में एक बच्चा अटक गया तो मैंने बोले हुआ था ना मैंने हाँ हुआ होगा आपने जो वीडियो देखा वो गलत नहीं है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है तो बोले व्हाट अगर मैं वो पर्सन रही तो मर जाऊंगी ना मैं तो मुझे नहीं जाना है तो मैंने सी आपका फेयर वैलिड है हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है तो बोले कि नहीं फिर भी मैं एस्केलेटर में नहीं जाऊंगी तो मैंने बोला ठीक है आप एस्केलेटर में मत जाओ बाकी ज़रिए भी है मॉल में जाने को आप सीढ़ी लेके जाओ एटलीस्ट पर आप जाओ तो सही पूरी तरह अवॉइड मत करो तो बोले हाँ ठीक है देन शी से ऑल्सो साथ में शी हैड अ प्रॉब्लम विथ स्लीप ऑल्सो नींद भी उनकी बराबर नहीं थी फैमिली का कल्चर ही ऐसा था कि रात को 1-2 बजे सब सोते थे सुबह जल्दी उठ जाते थे तो क्या होता है ना जब डर होता है तो एक एंजाइटी का भी एक कंपोनेंट होता है करेक्ट और एंजाइटी का कंपोनेंट ऐसा है कि उसको काफ़ी दूसरी चीज़ों से भी जुड़ा हुआ है कि अगर आपकी नींद ठीक नहीं है आप ओवरवर्कड हो तो आपको एंजाइटी होता है और जब एंजाइटी जब भी होती है तो कोई भी तरह का डर बढ़ जाता है करेक्ट सो ये भी एक प्रॉब्लम था तो मैंने पूरा एज अ फैमिली बात की कि नहीं पहले आपको उसकी नींद ठीक करो अगर उसके दूसरे भी उसको पढ़ाई के प्रेशर्स थे तो ये ऐसा एक चीज़ तो वो डेवलप हुई पर इसके बहुत सारे पीछे से कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज थे जो सॉल्व किए अब वो होने के बाद एटलीस्ट वो मॉल में जाने लगी वो एयरपोर्ट पे जाने लगी उसको मैंने कहा एस्केलेटर यूज़ मत कर तो पहले तो पेरेंट्स भी नहीं बैठ जा क्या होगा देन अगेन उसको पैनिक रिएक्शन तो अगेन वो आके बोली देखो पापा मम्मी मुझे पुश के मैंने बोला आप कुछ मत करो मत यूज़ करो एस्केलेटर बिगर भी आप ट्रैवल कर सकते हो मॉल में जा सकते हो तो बोले एस्केलेटर पे कब जाएगी मैंने जाएगी पहले उसको थोड़ा एटलीस्ट अब तो मॉल भी नहीं जाती थी Let her get over her surface level fear तो वो धीरे धीरे जब रैपो बना तो जैसे हम बोलते कि फियर को अगर ठीक करना है तो क्लासिकल कंडीशनिंग से हम ठीक कर सकते हैं लाइक ग्रेडेड एक्सपोजर बोलते हैं कि अगर कोई फियर है तो छोटा छोटा फियर को एक्सपोज करो फिर बड़ा फियर को एक्सपोज करो तो मैंने जब उसका रैपो हो गया उसकी नींद ठीक हो गई उसको पढ़ाई का प्रेशर भी कम हो गया तो मैंने बोला कि आप क्या करो कि आप पहले पापा मम्मी आपको उठाएंगे आप एस्केलेटर में नहीं खड़े रहोगे पापा मम्मी आपको उठाएंगे और एस्केलेटर पे लेके जाएंगे आप देखो वो ठीक है आपके लिए तो बोले देखती हूँ मैं कोशिश करूँ मैंने आप ट्राई करो सो उसने वो किया मम्मी पापा ने उसको प्रेस किया तो उसका एटलीस्ट वो कि हाँ ठीक है कॉन्फिडेंस आया फिर भला आप कोई छोटा एस्केलेटर कभी होता है ना उस पर जाइए तो आप थोड़ा उसको और
कोशिश करिए। तो ये 2 से 3 साल में ये फियर उसका कम हुआ एंड शी स्टार्टेड गोइंग टू एन एस्केलेटर। तो इस तरह के इश्यूज होते हैं जो हमको लगता है क्या हो क्या रहा है, और वो जब हम इस पे डीप जाते हैं तो हमको एग्जैक्टली रियलाइज होता है कि इस तरह का कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है जो एक बच्चे को या एक कोई Deeply भी व्यक्ति impact कर को सकता डीपली है। इम्पैक्ट करता है। Wow. So fear often makes us doubt our own abilities. Fear tells us ki I might not succeed to where I want to be. Right. I might not be the best painter. I might have the skill, but it makes us doubt our own skills and capabilities. Now tell me, how can developing a better understanding of fear help us handle challenges in our lives? राइट। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड फियर यू कैन एम्पावर योरसेल्फ टू डील विद इट। जैसे हमने फियर का अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि मुझे स्टेज फियर है, मुझे स्टेज पे बोलने में डर लगता है, तो हम समझते हैं कि वो फियर कहाँ से आ रहा है, कि फियर ऑफ जजमेंट, कि लोग हमको जज करेंगे, लोग हम पे हंसेंगे। तो प्रेजेंटेशन के पहले ही हम एंशियस हो जाते हैं, हम अवॉइड करते हैं। तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं हमारे सामने ऑडियंस है और हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, हम इमेजिनेट करते हैं कि ऑडियंस अप्रिशिएट कर रही है, मुझे पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल रहे हैं, मेरा काम अच्छा कर रहे हैं। तो हम जब अंडरस्टैंड करते हैं फियर को तो हम उस पर जीत पा सकते हैं। तो एंड व्हाट यू कैन डू इज़ वी कैन टेक स्मॉल स्टेप्स। पहले हम छोटे प्रेजेंटेशन दें, छोटे लाइक 5 से 10 लोगों के बीच में हम बात करें, फिर हम धीरे धीरे हमारा फियर ये करते हैं। जैसे स्टैमरिंग भी होता है, काफ़ी लोगों को स्टैमर करते हैं, उनको डर लगता है कि अगर मैं स्टैमर कर लूँ तो लोग मुझ पे हंसेंगे, और वो स्टैमरिंग की वजह से बिल्कुल बात नहीं करते। पर अगर वो किसी से बात करते हैं इस बारे में तो बोले इट्स ओके, स्टैमरिंग काफ़ी लोग समझते हैं कि स्टैमर लोग करते हैं, और अगर आप स्टैमर करते भी हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू और ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, इट इज़ ओके। काफ़ी लोग स्टैमरिंग करते हैं। तो जैसे हम जिस तरह से फियर को समझते हैं हम उस पर जीत पा सकते हैं। You know, like you said, अगर कोई stage पे जाता है and they have that fear of speaking in front of people, but the real fear inside is fear of judgment. Right. So let's say a parent has a child who can't speak on stage, has a stammering problem. Then I think one should understand it's coming from fear of judgment. Right. How do एक तो पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए समझते हैं, हाउ डज अ रेगुलर पर्सन अंडरस्टैंड दैट माई फियर इज कमिंग फ्रॉम फियर ऑफ जजमेंट एंड वेयर इज दैट फियर कमिंग फ्रॉम? बिकॉज लाइक यू सेड देयर आर मेनी लेयर्स, राइट? Right. सो वुड यू से फियर ऑफ जजमेंट इज surface level fear, ego level fear, or core level fear? Yeah, so it's a ego level fear of judgment. और core level will be I'm not good enough, कि मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकूँ। तो वो जो अंदर का रियल है कि नहीं ठीक है, मैं शायद गुड इनफ नहीं हूँ पर मैं कोशिश करूँगा, मैं करूँगा, मुझे पे लोग हंसेंगे भी या फेल भी होगा तो मेरे पास कोई 2-3 लोग जो है जो मेरी लाइफ में मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह का जब हमारा माइंडसेट होता है तो हम इस पे जीत पा सकते हैं। तो ये दैट्स वाई व्हेन यू अंडरस्टैंड फियर यू कैन विन ओवर फियर, एंड दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ फियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे ईगो लेवल फियर है, फियर ऑफ जजमेंट, राइट? तो उसका कोर फियर है आई एम नॉट गुड इनफ। बेसिकली ये कहाँ से आता है, जब बचपन में हमने एक्सपीरियंस किया है कि आपको अप्रिशिएशन नहीं मिलता है, आपको कंपैरिजन किया जाता है, आपको आपका फॉल्ट फाइंडिंग किया जाता है बाय मे बी योर फ्रेंड्स और बाय योर पेरेंट्स। तो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, कि मैं केपेबल हूँ, और करेज जो बोलते हैं जिसको। तो इस तरह का जब फियर होता है तो अगर वो भले बचपन में भी डेवलप हुआ है पर आगे जाके कोई जैसे थेरेपी होता है एंड दे मेक हर और हिम रियलाइज कि नो, सी यू हैव हैड दिस फियर्स बट स्टिल यू हैव done so well in your other things in your life, you are a bright student, you are worthy of love, affection. तो then you start working on this fear कि अगर ऐसा लगता है I'm not good enough, then you start realizing कि I may not be good enough in this area of life, but I am good enough in these aspects of life. So जो एरिया में हम ठीक नहीं कर रहे हम उस पर काम करें, because core level अगर ठीक होता है तो automatically ego level और surface level fear ठीक हो जाता है. Starts getting corrected. Right. And opposite of fear is not absence of fear. Right. Right? Or it is? No, it is not. Fearlessness is not, opposite of fear. Opposite of fear is courage, trust, and process. Now tell me, what is your perspective on this? Is somebody who's very courageous, has no fear at all, or do you say that everyone has some sort of fear, but because they're courageous, they have trust and they have presence of mind, they're able to overcome the fear? Can you explain Yeah, these things? right. So ऐसा नहीं है कि courageous people don't feel fear.
सबको फियर होता है, दे आर एबल टू प्रोसेस द फियर बेटर. तो जैसे कहते हैं कि फियर का अपोजिट फियरलेसनेस नहीं है. इनफैक्ट फियरलेसनेस इज रेकलेसनेस. जब आप फियरलेस हो जाते हो विदाउट थिंकिंग, यू बिकम रेकलेस. आप ज़्यादा गाड़ी तेज चलाते हो, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हो, एंड यू कैन लैंड अप इन अ प्रॉब्लम. बिकॉज फियर का बेसिक फियर क्यों है? हमको सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए. और हम उसको अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमेशा हम जो नहीं करना चाहिए वो करेंगे. सो जैसे ऐसे कहते हैं कि फियर किसी को होता ही नहीं, ये गलत है. सबको फियर होता है. बट जो फियर को समझता है, जो फियर को प्रोसेस कर सकता है, जो अपने एनवायरनमेंट को ट्रस्ट कर सकता है, वो फियर पे जीत पा सकता है. I think that is also confidence in self, right? Right. If you have presence of mind, Right. then you can overcome the fear that you may be experiencing. Right. There are a lot of misconceptions about fear that can actually keep us stuck. Can you explain these misconceptions? राइट. काफ़ी लोगों को बोलता है कि हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए फियर. अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट वे टू डील विद फियर. अवॉइडेंस से फियर जाता नहीं है. व्हाट यू आर डूइंग इज सप्रेसिंग द फियर, और वो फियर अंदर ही अंदर वॉल्केनो की तरह बन रहा है और वो कभी भी फट सकता है. तो हमें फियर को अवॉइड नहीं करना चाहिए, हमें फियर को फेस करना चाहिए. और काफ़ी लोगों को लगता है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उनको फियर नहीं होता है. और अगर आपको फियर है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते. तो ये दोनों चीज़ गलत है. क्योंकि हर कोई फियर को महसूस करता है, क्योंकि फियर एक ऐसा इमोशन है जो बचपन से लोगों में रहता है. तो ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस से और नए नए तरह के फियर बनते हैं. बट अगर फियर हमेशा हमारे निजी जीवन में हम उसको महसूस करते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम वीक है और हम उस पर काबू नहीं पा सकते. हम उसको अगर समझते हैं और उसको इस तरह से डिवाइड करते हैं कि कोर क्या है, सरफेस क्या है, ईगो क्या है, कहाँ से वो आ रहा है, और हम हर प्रोसेस और हर लेवल को समझते हैं, तो हम उस पर काबू पा सकते हैं. We all are, as a culture and a society, God loving. I hope, I wish, but I think we're more God fearing. Can you explain why culturally we are asked to fear God? Right. So if you look at what Bible says God is great. अगर हमको गॉड के प्रति एक रिस्पेक्ट से हमेशा देखना चाहिए और हमेशा उनसे डरना चाहिए. ये उनके लिटरेचर में लिखा हुआ है. तो ऑफ कोर्स whoever is reading it will come to believe that God is great and God needs to be respected. Psychologically, if you say, it's like a fear कि there is somebody divine who's looking after us. हम वो देख रहा है कि हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो वो भी देख रहा है, हम कुछ सही कर रहे हैं तो भी देख रहा है. तो आप गलत करेंगे तो आपको गलत मिलेगा उसका फल, Result. और अगर आप सही कर रहे हो तो आपको अच्छा मिलेगा. सो इफ़ यू जैसे कि अगर आप दान पुण्य करो, आप सब अच्छे से सबको ट्रीट करो, तो आपको अच्छा ही होगा. अब इसमें ऐसा है कि इसका कोई क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट का कोई हमारे पास तथ्य नहीं है. ये बेसिकली हमने जो पढ़ा है, हमने जो सुना है, उससे हमको ये है. बट ये एक अच्छी चीज़ है कि मॉरल कंपस क्रिएट करता है. तो काफ़ी लोग अगर गॉड में बिलीव भी नहीं करते, बट इफ़ दे बिलीव इट फ्रॉम द मॉरल कंपस कि या फियर से भी बिलीव करें, तो अच्छा ही है. बिकॉज आप कोई भी गलत चीज़ करने के पहले सोचोगे, आप कोई भी अच्छी चीज़ करोगे तो आप वो ज़्यादा करोगे. और इस तरह से काफ़ी हम साइकोलॉजिकली, जैसे हमको बोलते हैं ना कि को चिंता मत करो, भगवान आपका अच्छा ही करेगा. तो अगर आप कोई गलत टाइम से गुजर रहे हो, कि आप बहुत एंशियस हो, आप फाइनेंशियल लॉस में हो, या आपको कुछ भी चीज़ें आपके लिए It's a ठीक नहीं चल consoling factor. God will take care of गॉड it. विल टेक केयर ऑफ यू. सो देन इट्स एक्चुअली अ हेल्पफुल कॉन्सेप्ट टू, ये एक डर अच्छा डर. अगर इफ़ यू हैव अ फियर ऑफ गॉड, इट इज़ गुड. बट ओनली अगर वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है कि हमेशा आपको डर लगता है कि देखो कभी क्या होता है, हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं, वो चलते चींटी को वो लोग मार सकते हैं. तो उनको डर, ये बेसिकली जिनको कुछ थॉट प्रोसेस की प्रॉब्लम होती है कि मैंने अभी चींटी मार दी तो गॉड विल पनिश मी. तो ये जो पनिशमेंट का जो डर है, वो कभी भी इतना बढ़ जाता है कि वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाता है. तो देयर इज अ वेरी थिन लाइन. दिस फियर ऑफ गॉड इज़ वेरी गुड in most of the Cases. situations, but so some situations it may create anxiety. You're right. I think it is great to have it to the point where we think somebody is watching. Yes. You have to do the right deeds. Yeah. You're right. It creates moral compass. Right. That is one aspect. And where we are being rational. कि ठीक है, मुझे अच्छे कर्म करने, I have to do the right thing. The divine power is watching me, or God is watching me, or some superpower universe is seeing, and my good will be rewarded, and my bad will probably come back to me Right. tenfolds. Right. We are taught that since the beginning. I think most scriptures say that
that in different formats. So that is a thought process. Now let's jump to the other side of fear of God. Fear of God is, if I didn't go to mandir on Mondays because my grandma and my mother goes, I'll be punished. So punishment. Also superstition comes in. If you wear black on this day, something bad will happen to you. If I don't know, a black cat crosses, yes. it's something bad will happen. If I don't even know the superstitions, but there are many. मिरर अगर टूट जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आपका घर सोल में टूट something जाएगा, bad घर में will प्रॉब्लम हो happen. जाएगा, right? I don't know, if you jump this, you'll have a fight with somebody. Right. So these also are taught in a very religious manner. Right. Means the grandma has told the mother has told the child Right. that this is, coming from our scriptures, Yeah. coming from our faith, Right. and religion is brought into it. Right. So what can happen also, like you said, the other side is fear is being created. Superstition leads to fear. Right. Can you explain this? या सो अगर मिरर का हम बात करें कि अगर मिरर टूट गया घर में तो आपके साथ कुछ खराब हो जाएगा, तो ग्रीक माइथोलॉजी में फियर मिरर जो होता है वो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना रिफ्लेक्शन देख रहे हो तो आपका सोल है मिरर के अंदर, अगर वो टूट गया तो आपके सोल को चोट पहुंच गई। तो ये अगर इस तरह के फियर्स जब हम देखते हैं या हम इंस्टिल करते हैं और हम उसको उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते इस तरह का, तो सालों से चलता आ रहा है। बट अभी क्या हो गया है, हम लोग आज के ज़िंदगी में एटलीस्ट हर चीज़ क्वेश्चन करने लगे कि ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों बोला जाता है। और जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हम इस पर हमको कोई रास्ता मिलता है कि अगर ये एक माइथोलॉजिकल फेयर है जो मिरर का है तो ऐसा कुछ होता नहीं है, या ब्लैक कैट है वो डेविल है, अगर वो डेविल ने क्रॉस किया और आप डेविल को क्रॉस कर रहे हो तो आपके साथ भी गलत होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जब हम समझते हैं और हम उसको चैलेंज करते हैं और हम कभी कभी क्रॉस कर लेते हैं और देखते हैं, तो अगर बच्चा को डर है कि वो क्रॉस नहीं कर रहा है और वो वेट कर रहा है कि नहीं गलत हो जाएगा साइड से, नहीं, उसको समझाने का नहीं, आप जाओ, जो होगा देखा जाएगा, थोड़ा बहुत गलत तो होने ही वाला है, वो नॉर्मल होगा। हमें कभी भी एट्रीब्यूट करते हैं ना कि अरे देखो मैंने वो क्रॉस किया ना, मैंने गाड़ी चला दी, जब बिल्ली ने क्रॉस किया तो मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बट एक्सीडेंट होने ही वाला ही था, वो नहीं कि बिल्ली ने क्रॉस किया इसलिए। Or maybe somewhere deep down you have convinced yourself in the subconscious mind something will go wrong. हाँ. Hence you are functioning that something that goes wrong. goes wrong. और वो फंक्शनिंग या थॉट प्रोसेस में आपका गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं है और इसलिए आपका एक्सीडेंट हुआ। That's what I'm saying. हाँ. So I feel like somewhere the superstitions actually create fear is one thing and then create mislogic or there's no logic behind it. Absolutely. And your subconscious starts behaving like that. Right. So I think superstition is a very dark side, a very dangerous side to fear. Absolutely, you are absolutely correct, because fear of God is okay, जैसे हमने डिस्कस किया, but superstition should be challenged. Superstition, there should be more awareness about these superstitions, क्योंकि ये सालों से चलता है, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। Yeah, and like you said, Greek mythology में mirror, उस time में understanding नहीं थी कि mirror क्या है. They probably had no idea what mirrors are built for. We know now physics and maths and all about how mirrors are made, Yes. why they're made, Yes. what is the function of it. Right. Today you can't think that mirrors showing you your soul. We don't believe that. Absolutely. So actually the fear or the superstition should have an explanation or disclaimer कि इसके पीछे ये story है. Yes, yes. It's coming from Right. history, but that time history Right. people didn't know any better. Absolutely. Like they say don't cut your nails at night. But it was coming from a time where electricity wasn't there, people slept in the dark. Absolutely. They had to save electricity. It was Right. only in the daylight. There was no electricity. So Right. if you cut it, you might land up chopping something else of your body part. Yeah, yeah. But then even now, people have no logic and they tell you, Yeah. raat ko mat katna. Right. But there is no logic behind it. And it's the fear being created कि something will perpetually be going wrong with you अगर you do X, Y, Z. हाँ, जैसे आपने बोला अभी fear is protective. So ये nails नहीं कट करना रात को, ये fear है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तभी बनाया गया था, पर अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो बहुत सारे fear टाइम के साथ या सुपरस्टिशन टाइम के साथ डिसॉल्व हो जाने चाहिए, पर वो होते नहीं है। So I think we should encourage that. And I think you should encourage that as doctors, that really, where is it coming? Yeah, where is it coming from? Deep explanation about these fears and then rationally think about it. Then you can overcome it. So let me ask you about the biggest superstition, fear of nazar. People always believe that, if you show your success, your wealth, anything good happening to you, nazar lag jayegi, it will go wrong. It will be taken away. And like you explained that it is coming from protection. Like you said, we are trying to protect what we have. So protect the skin. Hence that fear was instilled. This may be to protect your happiness, protect your growth, protect anything good that is happening to you. But nazar isn't real, right? Right. No. Or it is? No. Well, if you look at from astrological point of view, it may be real, but we don't know. There is no scientific basis to prove it. Correct. So nazar is a
what you ask about nazar is a good question, because nazar is very complex. If you see, look at how this phenomena has developed. Basically, it is cultural conditioning and psychology. Okay, and how to overcome this fear? It's a fear basically represents a social anxiety कि अगर आप कुछ चीज़ें आपके लाइफ में अच्छी हो रही है तो उसको ज़्यादा दिखाओ मत, क्योंकि एक डर होता है अगर आप दिखाओगे तो नज़र लग जाएगी और गलत होगा तो It will be taken away. क्योंकि जब भी आदमी सक्सेसफुल होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है उसका सक्सेस, हमेशा लगता है यार चला जाएगा, किसी की नज़र लग जाएगी, किसी का कुछ गलत हो जाएगा. सो सोशल एंजाइटी लीड्स टू फियर ऑफ जजमेंट कि जज करेगा कोई और आपको गलत, ये तो इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है यार, इसके तो बहुत पेशेंट है, ये तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, इसका कुछ गड़बड़ होगा, एक पेशेंट इस पर केस ठोप देगा या कुछ करेगा. तो वो मन में डर, किसी ने बोल दिया और कुछ हो गया तो अरे देखो नज़र लग गई, किसी की गलत हो गया. सो हाउ डू यू ओवरकम दिस? You overcome this by understanding the whole concept of nazar. Let me discuss. Ki it's okay to be happy about your success, but don't be arrogant. So there's a very thin line. And show trust and respect in the universe. The universe is here to protect you and not to take away your happiness. So when you trust the process and trust the universe, ये आपको हमेशा जो डर लगता है कि सोशल मीडिया पे मैं बच्चों की फ़ोटो ना डालूँ या अपने हैप्पीनेस, अच्छी मैरिज है तो उसको ज़्यादा मैं बताऊँ नहीं, ज़्यादा फ़ोटोज़ ना डालूँ और ज़्यादा ये सब ना करूँ क्योंकि गलत कुछ हो जाएगा. तो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ ओके टू बी रैशनल अबाउट इट. अगेन देयर कम्स अ रैशनैलिटी कि भाई ओवर शेयरिंग ना करे, बट यू कैन शेयर योर हैप्पीनेस विद योर फ्रेंड्स. देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. Also, I think there's a psychology of I don't know what the technical term is, but it's almost as if other people have the control of your life. So, for example, agar something good is happening to me, and let's say I have a very bright chance of, I don't know, becoming the CEO of a company, and I tell 4 friends. Let's say it doesn't happen. I'll say because of those 4 friends, it didn't happen. So it means 4 friends have control over my life, not the universe, not me, not the person who's going to make me the CEO, but these 4 friends. Right. So I think that is also some kind of a, I don't know, superstition, disbelief, and some sort of haze that you're living in. Right. So basically it comes to irrational thought कि आपका जो irrationality आपके mind में है कि when you are sharing information, good things with others, it doesn't come to you. तो वो बिकॉज मे बी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ हुआ है जहाँ आपने शेयर किया और आपके साथ ये नहीं हुआ है, आप एक तरह का माइंडसेट बना लेते हो कि अगर मैं जब भी कुछ अच्छा चीज़ करने जाता हूँ तो वो नहीं होती है, तो वो वहाँ से रूट करती है. और इसकी वजह से हम हमेशा थोड़ी चीज़ें अवॉइड करते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि नहीं, हम अगर हमारी हैप्पीनेस शेयर करेंगे तो उसको नज़र लग जाएगी, वो चीज़ होगी नहीं. Can you tell us a story where fear and anger and pain has really turned into success? Yeah, so very good question. I'll tell you a story of a woman from Ireland. Okay, now for some reasons she landed up in a jail in Peru in South America, in a facility called Ancon 2. It's supposed to be one of the worst jails to live in. So she was imprisoned for 7 years in that jail. Okay, and during that time, in the initial 7-8 days, she couldn't sleep. She was feeling very, very frightened because of the inmates. Local language there is Spanish. She didn't know Spanish. So for first 7 days, she was drenched in fear. She couldn't sleep. She became anxious. So then she understood, okay, now we have to live here for 7 years. We can't do anything. So what she did was started eating, sleeping, and started learning Spanish on the first. She learned Spanish so she could make friends with inmates. Then she started a beauty salon in the jail. She started earning some money. From that money, she fought her case. So the sentence was reduced from 7 years to 3 years, and then she could fly back to Ireland. And then through this experience, she became so empowered that she wrote books on her experience there. She understood life in a better way. How she could face that fear and come back as a better person. So sometimes fear can actually transform your life. It is always not bad. It can transform your life and make you a good person.
Yeah, that's very true. I think there are many aspects to it. Obviously, we were talking about more surface level fears, ego level fears that we should understand from our day to day lives to correct our day to day lives and not live in a fearful manner. But for sure, some experiences that are based on fear can really transform our lives. Right. So, I believe, Doctor, you're also a writer and you love poetry. Can you tell us something that you've written about fear? Because we spoke about fear so largely today. So, डर तू कितने दिन मुझे सताएगा, मेरी हिम्मत देख के तू नष्ट हो जाएगा, थोड़े दिन तू मुझे ज़रूर रुलाएगा पर मुझे तोड़ नहीं पाएगा, मुश्किलों से हारना मैंने सीखा नहीं है, मेरे आगे कोई माइकल टिका नहीं है. Amazing. Did you write that yourself? Yes. That's beautiful. I write, sometimes, To end the session, I would like to ask you my favorite question that I ask all my guests. Tell me, if you were to introduce yourself to me without mentioning your occupation, where you're from, your ethnicity, your nationality, or your hobbies or your religion, which are day-to-day markers to express ourselves, to explain ourselves, how would you describe yourself to me? Right. So, I am actually a family person. Okay, I spend a lot of time with my kid. She's 4-year-old, and I like to play sports. And I like to basically understand the stories of my clients whom I see every day, and I want to invest in their stories and find out that what is there in that story which needs correction, which needs to, what they need to feel better about it. So you can say I'm a very, person who only does 3 or 4 things, but tries to do it with the best of my abilities. Great. Thank you. Thank you so much, Dr. Shah, for being here today, and it was a great conversation. Thank you for inviting me. It was great talking to you. Hello friends, I'm Dr. Mohit Shah, a psychiatrist with more than 15 years of experience treating patients from more than 40 countries. For me, mental health should be as normal to talk about as headache or a broken bone. I have seen how silence, stigma, superstitions, and the fear of God can make recovery much harder for my clients. I use real clinical insights to tackle these myths head on. Subscribe and let's normalize these conversations together.